एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਰਸੇਮ ਰਾਣੀ, श्री राम स्वरूप जयरथ, श्रीमती संतोष बाहरी, डॉक्टर रचना, डॉक्टर राजकुमार, कमल बाहरी, राधिका बाहरी, विकास बाहरी, अनु बाहरी, सुकृति, हर्ष, सिद्धांत, सिद्धार्थ, शाइना, कृशान बाहरी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਰੂਮਲ ਬਾਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਹਨਦੇਈ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1946 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤਰਸੇਮ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਮੋਹ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤੇ ਆੜਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1970 ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਕਮਲ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਕਮਲ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਹਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆੜਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹਰੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹਰੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸੁਕ੍ਰਿਤੀ, ਹਰਸ਼, ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਧਾਰਥ, ਸ਼ਾਇਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਬਾਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ MLA ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
अरदास
चरना दे पास मेरिए अरदास, चरना दे पास मेरिए सिया राम एगो अरदास मेरिए सिया राम एगो अरदास मेरिए सिया राम सिया राम एगो अरदास मेरिए अरदास चरना दे पास मेरिए अरदास चरना दे पास मेरिए अग्गा बुराइयां वालों डकी अग्गा बुराइयां वालों डकी अग्गा बुराइयां वालों डकी मेरे पिछले पिछले पापा वाल ना तकी हरदम मेर नजर दी रखी मेहरबान मेहरबान जिंदगी दी आस मेरी मेहरबान जिंदगी दी आस मेरी सिया राम एहो अरदास मेरी अरदास चरना दे पास मेरी अरदास चरना दे पास मेरी तेरे चरना ते सिर रखा तेरे चरना ते सिर रखा तेरे चरना ते सिर रखा धोआ चरण में भर भर अखा तू ही थावे ता सिर चुका जानी जान जानी जान मुंड तो आस मेरिए जानी जान मुंड तो आस मेरिए सिया राम एहो अरदास मेरिए सिया राम एहो अरदास मेरिए सिया राम सिया राम एहो अरदास मेरिए अरदास चरना दे पास मेरिए के बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी दानशाही बड़ी जग में प्रगति है के धर्म बड़ो धन धाम बड़ो धर्म बड़ो धन धाम बड़ो कलपुत बड़ी
बड़े भाग्य से हमें ये 14 प्रदान हुआ। उस प्रभु ने इतनी कृपा दी। 84 लाख योनियों के बाद जो है ये हमें ये मानुष्य योनि मिली। किसी प्रभु का स्मरण करने के मानुष योनि में ही प्रभु का स्मरण किया जा सकता है, लेकिन हम उस प्रभु को भूल जाते हैं। अगर मानुष योनि में उसका स्मरण नहीं किया तो हमारे और ये जानवर जो घूमा करते हैं, क्योंकि खाते वो भी हैं, पीते हैं, कुत्ते, सोते, जागते, क्या कर्म नहीं करते हो। प्रभु का स्मरण किया। प्रभु का स्मरण जो है ये मानुष योनि में किया जा सकता है, क्योंकि ये खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम। अरे बंदे में बस फर्क यही है, जब एक प्रभु का नाम, नहीं तो प्रभु तुमसे जो पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, यहां से क्या ले जाना है, कुछ नहीं, खाली हाथ है, खाली हाथ चले जाना है, साथ हमारे क्या जाएगा, संग सखा सब तज गयो, कोई ना निभ्यो साथ, कहना नानक शिव पद में एक टेक रघुनाथ। हमारे साथ जाएगा प्रभु का नाम, या वो हमारा कर्म जो है, जो हम कर्म करते हैं वही हमारा जानवर इस वस्तु है वही, और उसी को हम भूल जाते हैं। उस प्रभु को जवाब देना पड़ेगा ना, जो वादा करके आया था। प्रभु तुमसे जो पूछेगा कि क्या लाया है दुनिया से, अरे बहाना क्या बनाएगा, वो तुमसे ही शयाना है। अरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। हम सुनते हुए समझते हुए उस प्रभु को भूल जाते हैं, तभी हम दुखों में फंसे हुए हैं। हम दुख में याद करते उस प्रभु को, सुख में भूल जाते नहीं। सुख में उसका स्मरण किया जाए तो दुख हमारे पास नहीं आ सके, याद रखें। जब आपके उदर में धर्म लटका हुआ, भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं बाहर जाऊंगा, मैं तुम्हारा स्मरण करूंगा, मैं यहां मुंह के गड्ढे में अकेला भुगतान कर रहा हूं, जिनके लिए मैंने कर्म किए। हम इसलिए कर्म करते, अपने परिवार के लिए, अपने 5 बच्चों के लिए। अरे सुखों में सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, वो भी सुख के साथ ही है। पूछ के देखो कि मेरा दुख में साथ देगा क्या, देगा? सुख में साथ तो प्रभु, उसी का हमें स्मरण करना चाहिए। हम भूल जाते हैं। कुछ समय के लिए हम पुराण सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी हमारी मति जो भगवान को जाती है, या गर्भ में, या पुराण सुनने में, या फिर शमशान में हमारी मति जो अब भूल जाते नहीं। हम उस प्रभु का स्मरण करना चाहिए जिसने हमें ये मानुष योनि प्रदान की है। सिया राम
विधि जपिए नाम रहना नहीं देश बेगाना है रहना यश जप यश विधिया कि जड़ियां सूरता चरण चुबारिया ते जड़ियां सूरता चरण चुबारिया ते एक दिन चिखा ते चढ़दियां वेखियां मैं जड़िया जुल्फा अतर फलेल बिंदिया वांगू घा दे सड़दियां वेखियां मैं जिना सूरता फते मैदान कीते अगे मौत नाड़दियां वेखियां मैं चढ़ के काट दी घोड़ी निकल गईया मुड़ के ना शहर मुड़ दिया वेखिया मुड़ के ना शहर मुड़ दिया वेखिया जिना झूठ सच मरना इसमें कोई राय नहीं है कि जो निशान इस धरती पर आए उसे एक ना एक दिन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जिंदगी क्या है किराए का घर है मौत देखे ना छोटे बड़े आ जाए तो डरती नहीं लाख रोको तो रुकती नहीं लाख बदलो बदलती नहीं मौत सबके सिराने खड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी होती है भयानक बड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी मरने वाला उमरिया को चाहे मांगे मिले ना पर एक घड़ी हमें जितने श्वास भगवान की तरफ से मिले हैं उसे दिन भर भी इधर उधर नहीं हो सकता मौत का समय जो है ये भगवान ब्रह्मा को पहले निश्चित कर देते समय स्थान ये पहले निश्चित हो जाते हैं कारण जो है कोई ना तो मौत का बन जाता है आज इस शोक सभा में हम सब उपस्थित रहेंगे
तहसीलदार बहारी जी जो अपने श्वासों की गोदी समाप्त करके तो महाराज के चरणों में चले गए। धर्मपत्नी श्रीमती संतोष बहारी पिता के चले जाने के पश्चात जो कि कर्म प्रकार है, कर्तव्य जो है बेटे का क्या है, अंत्येष्टि क्रियाक्रम में आज बेटों ने किया। श्री कमल बहारी जी, धर्मपत्नी राधिका, बेटे विकास बहारी, अनु बहारी, बेटी डॉक्टर रचना, डॉक्टर राजकुमार जी, पीछे बहुत सुंदर प्रभारी छोड़कर गए, और सिद्धांत जो कि कनाडा में है, और श्रीमती हर्ष जी, और किसान दोता सिद्धार्थ साइना जो कि बच्चे कनाडा में हैं। दोनों आज मेरा परिवार, बाहरी परिवार, खुशना परिवार, परिवार जो यहाँ उपस्थित हैं, तो बहारी साहब जो कि सिंगाल जी अन्य संस्थानों से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत सेवा की। मंडी फेंटनगंज वहां भी अध्यक्ष कमेटी के साथ धार्मिक कला के साथ जुड़े हुए थे। धार्मिक संस्थानों में आगे बढ़कर हिस्सा लेना, धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक कामों में सब में बढ़कर करके हिस्सा लेने वाले आज तो जनता कौन के लिए अन्य स्थानों से शोक प्रस्ताव आए हैं। वसुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। मंदिर श्री शिव बाबा केशवनाथ जी जतेरी की तरफ से, लाला राम किशोर का पोर्टलैंड सेंटर ट्रस्ट की तरफ से जो कि आश्रम की तरफ से जो आज शोक प्रस्ताव आया है, परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है। अपाहज आश्रम की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री आश्रय माता महेश्वरी देवी जी की तरफ से जो कुंभला बिंदगढ़, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हमारे बीच में मानजो आदि श्री राम किशोर जी महाराज उपस्थित हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। आज श्री तरसेम लाल जी बारी साहब की शोक सभा में सभी विराजमान हैं। हमें इस सभा को शोक सभा के अलावा ज्ञान सभा भी कह सकते हैं। बारी साहब मंडी फेंटरगंज में आप सभी ने देखा होगा एक राम मंदिर है, बड़े ही श्रद्धालु थे। मन भक्ति दास जी से बड़ा प्रेम था इनका, बहुत प्रेम था। बैठते तो मंगलवार को वहां जरूर आते
कोशिश हुए। हनुमान जी का चोला चढ़ता है हर मंगलवार को, सबसे पहले आ जाना। इनके परिवार का भी बड़ा बहुत प्यार है उस मंदिर से। भक्त कहा गया है, मैं पहले कहा हूं कि ज्ञान सभा भी इसे कहा जा सकता है, शोक सभा तो है ही है। सभी को पता है जो आए हैं सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन जानते हुए भी हम इसे टालते रहते हैं, कभी इस पर विश्वास नहीं करते, होता नहीं विश्वास। अगर कोई चला जाता है हमारे बीच में से तो हम कहते हैं ना, ये विश्वास नहीं हो रहा है, कल तो मेरे साथ घूम रहा था। ये मौत किसी को टाइम देता नहीं, मौत किसी को टाइम नहीं देता। एक सेकेंड का भी, एक सांस का भी जो जाएगा आपके साथ। तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है, जो अनन्य कांड में है कि पहली भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट कलिगा। राम जी ने कहा चौथी भक्ति है, लेकिन मन में कपट नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार भी आप राम नाम का सुमरन, एक बार राम कह दें तो एक बार ही बहुत है, लेकिन मन में कपट नहीं होनी चाहिए। पार्वती जी करे उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर कोई सत्य है तो प्रभु का भजन है। आगे कहते हैं तो स्वामी तुलसीदास, निज अनुभव में कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न चाहि कलेसा। अगर घर का कला कलेश मिटाना है तो भजन, राम का सुमिरन, सबसे बड़ा कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, एक ही नाम है राम। इससे बड़ा कोई ना मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई जाप है, एक ही नाम है राम। सभी भक्तों ने राम नाम सुमिरन किया है। जितने भी भक्त हुए हैं राम नाम की नैया पर चढ़ के पार उतरे हैं। ग्रंथ साहब में भी है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम के लिए, कह नानक सुनने मना दुर्लभ मानस दे। अगर इस संसार में रह के सुख चाहिए तो शरण राम की जाइए। गुरु ग्रंथ साहब में 2202 बार राम नाम का उच्चारण है, 800 बार से ज्यादा ठाकुर जी का उच्चारण है। अगर आप सारा दिन काम करने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि एक घड़ी गृहस्थियों के लिए है, एक घड़ी, अगर नहीं है एक घड़ी तो आधो घड़ी, आधो में पुण्याद। अगर कहते हैं गोस्वामी जी 15 मिनट तो भजन कर ही सकते हो ना, 15 मिनट भी भजन अगर हो जाए तो बहुत है। 24,000 सांस रोज आप लेते हैं और छोड़ते हैं, तो आप समझिए कि आपकी जिंदगी का 24,000 सांस रोज घट रहा है। जो आप 24,000 सांस रोज लेते हैं और छोड़ते हैं, वो 24,000 सांस आपका रोज का घट रहा है, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं हो रहा। बैंक बैलेंस जैसे आप धन कमा रहे हो, वैसे राम नाम की कमाई का बैंक बैलेंस चाहिए, जो अगर 15 मिनट भी हो जाए तो बहुत है। गृहस्थी के लिए गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा शब्द कहा है कि इससे बड़ा कुछ नहीं। गृहस्थी में बहुत काम है, ब्याह है, शादी है, सुख है, श्राद्ध है, यज्ञ है, पुण्य है, जाप है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, बहुत कुछ है। लेकिन उसके बाद अगर राम नाम का उच्चारण हो जाए तो इससे बड़ा भक्ति और कोई नहीं। मैं प्रभु चरणों में, आज बारी साहब चले गए, बड़े बारी भक्तिदास जी, वहां के विराजमान महंत बंसीदास जी हैं, हरिद्वार किसी काम से गए हुए हैं। उन्होंने कहा बाबा जी आप जरूर जाइएगा। और
बारी साहब से बहुत बारी मेरी मुलाकात हुई वहाँ, क्योंकि हर मंगल और संडे को मैं जाता ही था राम मंदिर में। तो भक्ति के रास्ते पर परमेश्वर के चरणों में जा विराजे हैं। आप भक्ति करोगे तो घर में सुख, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई टेवा दिखाने की जरूरत नहीं, कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं। अगर राम नाम से जुड़ गए, राम से बड़ा कोई मंत्र नहीं। लेकिन इसका रास्ता हनुमान जी हैं, जो बारी साहब ने अपनाया था। हनुमान जी, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न क्या बिन पैसारे। अगर भक्ति करना है तो हनुमान जी जैसा बनना पड़ेगा। अगर हनुमान जी जैसा कैसा, मन में विचार कीजिए। थोड़ा सा अगर किसी को धन आ जाए, थोड़ी सी ताकत आ जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। हनुमान जी के पास इतना बल है कि कोई नाप नहीं सकता। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, तनुज बल दर्शानो ज्ञानानामगर्गण्यम, सकल पुण्यधारम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वाजात नमामि। हनुमान जी जैसा बल में कोई और दूसरा बल वाला नहीं। अगर रूप धारण करें तो हिमालय से बड़ा भी रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं लेस मात्र भी घमंड नहीं है। अपने आप को कहां रखते हैं हनुमान जी? सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, सदा करे सेवक से प्रीति। हनुमान जी कहते हैं कहूं कवन मैं अधम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात लई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि हारा। हनुमान जी कहते हैं कि जो सवेरे मेरा नाम ले ले उसको भोजन भी नहीं मिलता है। अपने आप को सबसे नीचा रखते हैं। जहां सत्संग हो सबसे पहले आते, सबसे पीछे बैठते हैं। इतना बल होने के बाद भी। लेकिन आज थोड़ा सा अगर पद मिल जाए तब जमीन में पैर नहीं लगता, जमीन में पैर नहीं लगता, संभाला नहीं जाता है। संभालने की शक्ति अगर लेना है तो राम नाम, राम से बड़ा। जैसे आप सुमिरन करके देखिए, जैसे आप सुमिरन करना शुरू करेंगे वैसे ही फल लगना, अपने आप को झुकना आ जाएगा। जिस आदमी को झुकना आता है सब कुछ मिल जाता है, जिसे झुकना ना आए उसे कुछ नहीं प्राप्त होता। यहाँ भी और वहां भी झुकना सबसे बड़ी नम्रता। पांचम भक्ति वेद प्रकाशा, छठम शील गुण दिखाने। छठम भक्ति में आया है कि शील होना, गुणों के भंडार होना। छठम भक्ति, ये भी छठम भक्ति है। अरुणा महासभा शाहकोट से प्रधान प्रवीण ग्रोवर जी यहाँ उपस्थित हैं। परिवार की प्रशासनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ आदरणीय एडवोकेट रमेश चंद्र चौधरी जी से कृपया मंच पर आने पाते हैं। धन्यवाद। दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु इस शोक सभा पर संत जी ने इनको ज्ञान सभा भी कहा है, ठीक कहा है। मैं उपस्थित भारी संख्या में मातृशक्ति, जालंधर शहर के प्रबुद्ध, सामंत, प्रतिष्ठित नागरिक बंधुओं, इस हॉल में उपस्थिति अपने आप में ये दर्शाती है कि भारी जी का व्यक्तित्व सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से कितना ऊंचा था। 5 फरवरी को इनके घर में मैं इनके परिवार सहित मिला था। सौम्य स्वभाव के, मृदुभाषी, दूरंदेशी और सबके हितों की चिंता करने वाले ऐसे भारी साहब आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। जो मंच पर चित्र लगा है भगवान कृष्ण अर्जुन को इसी हेतु उपदेश देते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 20, न जायते म्रियते व कदाचिन ज्ञान्यम्
भूत्वा भविता व न भूयो अजो नित्यम शाश्वतम प्राणम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, ये जीवात्मा ना तो जन्मती है ना पैदा होती है, ना ऐसा था कि भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में होगी। ये शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर नहन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी ये जीवात्मा नहीं मरती। भगवान कृष्ण इसी दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं, बासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश होती है। नया शरीर इसको इसकी कर्म गति के अनुसार मिलता है। 23वें श्लोक में भगवान और जीवात्मा के प्रति अर्जुन को स्पष्ट करते हैं, नैनम शिदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम करो दद्यातम न शोषति मारुते। इस जीवात्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती और जल गीला नहीं कर सकता। ये जीवात्मा शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। श्री तस्वीर जी हमारे बीच में ये पंच भौतिक शरीर के माध्यम से उपस्थित नहीं है, लेकिन जीवात्मा क्योंकि अजर अमर है, उसकी श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी प्रकार का प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के अयोध्या कांड में कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कयो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भगवान रामचंद्र जी को वनवास हो गया, लक्ष्मण जी साथ गए, सीता माता भी साथ गई और अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का निधन हो गया। उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न अपने निहाल में थे। उन्होंने एक दूत भेजा कि तुरंत जिस भी अवस्था में है भरत को और शत्रुघ्न को तुरंत अयोध्या में लाओ। जब वो प्रसंग लंबा है, मैं छोटा समय की अनुकूलता के अनुसार, भरत जी आते ही मुनि विश्वनाथ से पूछते हैं, मुनि वशिष्ठ जी से पूछते हैं कि मुनि वशिष्ठ जी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, वो 7 ऋषियों में उनकी गणना है। ऐ मुनिनाथ, आपके होते हुए अयोध्या में ये अनर्थ कैसे हुआ? आप तो थे, आप सब कुछ रोक सकते थे। तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, सुनो भरत, ऐ भरत सुनो, सुनो भरत भावी प्रबल। ये जो काल की गति है ये बड़ी प्रबल है, ये अपना समय लेती है और लेकर ही चलती है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कयो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण यश अभयश ये विधि हाथ, ये ईश्वर के हाथ में है। उसी के निमित्त आज हमारी जिस शोक सभा के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, हमें स्मरण रहना चाहिए हमारी भी शोक सभा होगी और उसके लिए हमें भी अभी से तैयारी करनी चाहिए। हम भूल जाते हैं। यही प्रश्न राजा परीक्षित ने, जो अर्जुन के पौत्र हैं, व्यास के पुत्र शुकदेव मुनि जी से पूछा, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के 19वें अध्याय के 37वें श्लोक में आता है। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। जिस पुरुष जो की अल्प आयु है, जिसने यानी 7 दिनों के बाद मर जाना है, उसे क्या करना चाहिए? इसका उत्तर सुखदेव मुनि जी दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में देते हैं। तस्मा वदानत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतितव्य चेष्टाभ्यम। जो पुरुष अभय पद चाहता है, यानी जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है, उसको भगवान श्री कृष्ण की लीला अमृत की कथाओं की सुनना चाहिए।
कीर्ति तभी उसकी व्याख्या करनी चाहिए और भगवान का नाम हर समय अपने हृदय में रखना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। शबरी की नवदा भक्ति का उल्लेख आया। ये अरण्य कांड की 34वीं चौपाई में आता है। महाराज 8वीं चौपाई जो 8वां जो इसकी नवदा भक्ति में 8वीं जो भक्ति है, 8वीं यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखूं परिदोषा। और भगवान राम तो कहते हैं शबरी नव महु एक हूँ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अति से प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोड़े। तुझमें तो 9 के 9 प्रकार की है, मुझ में किसी एक की भी हो वो भी चलेगा। समय की अनुकूलता है, शायद समय मैंने अधिक ले गया। आप सब इस शोक सभा में आए, बाहरी जी के प्रति हम सब इनकी दिवंगत आत्मा के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर इनको अपने गौधाम में स्थान दे। आप सब की ओर से मैं पुनः यही प्रार्थना करता हूँ। संत जी ने बहुत अच्छा कहा, ये शोक सभा भी है और ज्ञान सभा भी है, इसलिए बैठे बैठे ये 2 चित्र देखकर मेरे मन में जो भाव आए तत्काल तो मैंने आपके सन्मुख थोड़े शब्दों में रखे हैं। हरिओम शांति शांति शांति। तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं उषा हूँ किशार। तेरे ही भरोसे मैं, तेरे ही भरोसे मैं उषा हूँ किशार। तू चरणों से अपने न करना जुदा।